Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal Commerce Net classes. Students, today we are going to start another important topic of organizational behavior. Yesterday we have started leadership. Now we will again proceed the leadership topic by another part of this, which will be style of leadership. In this particular lecture, we will discuss leadership styles. So first we will go through the significance or importance of leadership, because before we go ahead we must understand the importance of leadership, how it is going to be important for the organization. We will discuss them one by one, point wise. It helps in managing the organizational relationship, both formal and informal. It is true, students, because if the leadership is going to be done in a right manner, then all the relationship of the organization, whether the relation are formal or informal, are going to be maintained in a very sweet manner, in a very good manner, in a very objective fulfillment manner. So it is very important for the organization. It creates a sense of duty in the employee towards the organization. When employees are getting the good response from the employers against their work, their performance which they have done for the organization, और उनको recognition दिया जाता है, employees को एक काम करने के against उनको value किया जाता है, तो उनका जो sense of duty है वो भी कहीं ना कहीं high हो जाता है, उनकी responsibility का level high हो जाता है. Through this simple to complex task can be done easily. अगर आप सभी चीज़ों को, एक्टिविटी को एक फॉर्मेट में करोगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से करोगे, तो जो डिफ़िकल्ट टास्क है, जो हमको मुश्किल लग रहा है, वो भी इजी हो जाएगा. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी चीज़ को ढंग से नहीं करेंगे, उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तो आपका इजी वर्क भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. Then again, it helps in getting acceptance of workers towards the dynamic working environment. आप जब लीडरशिप के थ्रू, लीडरशिप के दौरान काम करने की एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, आप एक फॉर्मेट क्रिएट करते हो, तो जो वर्कर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं बट अभी तक नहीं कर सकते थे, कर पाते थे, और वो वर्कर्स जो काम नहीं करते थे अभी तक, उनकी तरफ से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता था, वो भी अब डायनामिक वर्किंग एनवायरनमेंट की तरफ इन्वॉल्व होंगे. व्हेन दे आर गेटिंग द मैजिक रिजल्ट्स ऑफ दैट working, that activity, so it will help for both kinds of workers in the organization. This make it easier for the company to bring in the changes and promoting cooperation. जब आप टीम में काम करते हो, जब यू हैव अ गुड लीडर ओवर यू, आपका जो हेड है वो एक डायनामिक और कोऑपरेटिव हेड है, सो ऑब्वियसली दैट स्पार्क विल गो ऑन अमंग द टीम मेंबर्स. आप मेंबर्स के बीच में भी वही कोऑपरेशन, वही प्रमोशन, वही जो हेल्पिंग एनवायरनमेंट है, वो आप देखोगे कि वो क्रिएट होता है. बिकॉज अगर द हेड और द टीम लीडर इज़ द very dictator kind of a person, so वही स्पार्क, वही एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उस टीम में, उस ऑर्गेनाइजेशन में. व्हेन द लीडर इज गोइंग टू बी वेरी कोऑपरेटिव, देन ऑब्वियसली द वर्कर्स, द मेंबर्स ऑफ द टीम विल आल्सो वर्क इन अ वेरी कोऑपरेटिव वे. This motivates the employees and builds up their morale and confidence. और इसी वजह से as a consequence, as a result, आपके employees organization में जो लोग काम करते हैं, जो staff है, वो motivate होता है और एक नया मोराल और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि इफ़ वी आर डूइंग द गुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑब्वियसली वी विल गेट द रिजल्ट, वी विल गेट द डिजायर्ड गोल्स फुलफिल्ड. Right, leads to better performance and increased productivity. दिस इज़ अ डेफिनेट एंड वेरी करेक्ट स्टेटमेंट कि जब आप काम करते हो, आपको रिकग्निशन मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस से रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है. इफ़ वन डे यू गेट द रिजल्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस, देन अनदर डे यू विल ट्राई टू गिव मोर better and higher level of performance to the organization, and it will resulted into the increased productivity in the organization. When the workers are giving their 100% performance and 101% of performance, then obviously the organization is going to have the increased productivity. It enhances overall organizational effectiveness. When the whole
When the whole environment is good in the organization, when the employers are happy, they are getting the result, when the employees are getting the recognition and value in the organization, when the head, the leader is going to be cooperated with the people, then obviously the overall organization is going to be very effectful, very impactful. देन रिकंसीलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स गोल्स, जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे अगर जो थर्ड कैटेगरी या थर्ड लेवल ऑफ ऑफिसर है वो कोशिश करेगा कि मुझे प्रमोशन मिले, मैं सेकेंड लेवल ऑफ लेवल पे पहुंचूं, जो सेकेंड लेवल का ऑफिसर है, सेकेंड लेवल का एम्प्लॉय है, वो कोशिश करेगा कि वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचे, और इसके लिए उसके अपने कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं। हर एम्प्लॉय के अपने कुछ इंडिविजुअल मोटिव्स होते हैं, वो क्लैश नहीं होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दैट ऑल हैज़ टू बी डन ओनली इन गेटिंग द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और व्हेन यू हैव द लीडरशिप, व्हेन यू हैव द राइट लीडर in the organization, in your team, so obviously those goals are going to make are going to play a very positive role for the organization. Or in the absence of this, if the leader is not appropriate, तो वही goals, वही employees के जो motives हैं वो आपस में clash करेंगे और कहीं ना कहीं organization एक collapse की तरफ आगे बढ़ेगा। yes, अब हम आगे बढ़ते हैं। वी विल डिस्कस द लीडरशिप स्टाइल्स, जिसमें कि हम लीडरशिप कितने स्टाइल से होती है, कितनी तरह के लीडरशिप किए जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। So when we talk about the leadership style are the behavioral pattern adopted by the leaders to influence his followers. जो लीडर होता है उसको वो डिफरेंट स्टाइल्स ऑप्ट करता है अपनी टीम को लीड करते वक्त, राइट। सो अगर हम स्टाइल की बात करते हैं तो मेजरली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल्स: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और फ्री रेन लीडरशिप। इस तरह से 3 लीडरशिप के स्टाइल हमको देखने को मिलते हैं। So we will discuss the first one, which is the autocratic leadership style. These leaders take decision solely without discussing with the subordinates, hence quick decision making. So ये तो एक नेगेटिव पॉइंट के साथ एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जो लीडर होता है वो अकेले ही डिसीजन लेना पसंद करता है। ही इज़ नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व द अदर टीम मेंबर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्वॉल्व नहीं करता है, उनसे डिस्कस नहीं करता है और अपना डिसीजन लेता है। तो इससे ये तो ज़रूर होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होता है, लेकिन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर पीपल इज कैन नॉट बी डन इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दे प्रेफर टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, और जो लीडर ने अपने रूल्स बना दिए, जो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स फॉर्म कर दिए, वो ये चाहता है कि सभी मेंबर्स बस उसको बिना इफ एंड बट करे उसको फॉलो करते रहें। देन इम्बाइब फियर इन द माइंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और इस तरह के जो लीडर्स होते हैं ये अपने फॉलोअर्स से डर के द्वारा काम करवाते हैं। वो उनके दिमाग में डर क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं कि दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर टू जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द लीडर। देन सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड वन साइडेड कम्युनिकेशन। इस तरह के लीडरशिप स्टाइल में ऑब्वियसली व्हेन द डिसीजन इज टेकिंग बाय द हेड ओनली, तो केवल एक ही बंदा डिसीजन लेगा, एक ही बंदा बात करेगा और अपनी बात केवल दूसरों पर थोप देगा कि आपको ये करना ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो कम्युनिकेशन 2 साइडेड नहीं है यहाँ पर केवल एक ही साइड का कम्युनिकेशन है और केवल लीडर से उसके टीम मेंबर्स की तरफ है, वाइस वर्सा भी नहीं है कि अगर टीम मेंबर हैज़ नो राइट टू communicate or to represent themselves or to present their views. Only the head or the leader has right to communicate. Then prefers to give orders. And इस तरह के स्टाइल में जो लीडर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो केवल ऑर्डर्स पास करते हैं कि यू हैव टू डू दिस, बिना किसी बात को सुने हुए, बिना किसी बात के किसी दूसरे के व्यूज़ को डिस्कस करे हुए केवल अपना ऑर्डर पास करना ही ये इस तरह के लीडर्स पसंद करते हैं। यूज़ नेगेटिव मोटिवेशन टू मेक पीपल वर्क मेक्स एम्प्लॉयज़ मोर फ्रस्ट्रेटिंग। बिल्कुल सही बात है, अगर हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिले, इफ़ वी आर फीलिंग कि नो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू द वर्क, बट स्टिल वी आर फोर्स टू डू वर्क इन अ राइट इन दैट पर्टिकुलर मैनर विच हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लीडर,
सो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डीमोटिवेट होते हैं, एक नेगेटिव मोटिवेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिसका हम एक एग्जांपल से इस तरह के लीडरशिप को समझेंगे। हम देख सकते हैं, हमने अपने हिस्ट्री में, अपने स्कूल टाइम पे भी डिस्कस इसको पढ़ा है। हिटलर हिटलर इसके लिए एक बहुत ही रिनाउंड और बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कभी भी दूसरों को नहीं सुनता था, केवल अपनी बात मनवाता था और अपनी बात कहता था। ठीक इसी तरह अगर करंट सिनेरियो में हम जितने भी लीडर्स वर्ल्ड वाइड हैं उसमें अगर हम देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर किम जोंग उनका भी कुछ स्टाइल हिटलर से मिलता हुआ है। वो भी दूसरों की बात सुनना और दूसरों से कुछ भी समझना पसंद नहीं करते और केवल अपनी बात दूसरों पर थोपते हैं। सो ये दो जो लीडर्स हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप किस तरह से हो सकती है। Then we will move forward towards the next style of leadership, which is democratic leadership. Let's discuss students कि इस तरीके की leadership में क्या features होते हैं और किस तरीके से leadership के style को pursue किया जाता है। It is also called a participative style. हम डेमोक्रेटिव लीडरशिप को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल कहा जाता है। द लीडर इंटरैक्ट्स फ्रीली विद द एम्प्लॉयज़। ये जो स्टाइल है इसमें बहुत ही ओपन इन्वायरमेंट होता है, बहुत ही इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट होता है, और इसमें जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट से, अपने टीम मेंबर से लगातार इंटरैक्ट करता है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट हैविंग द हेजिटेशन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। वो फ्रीली लोगों से बात करता है, उनकी बात सुनता है। देयर इज़ प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन एंड बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर दोनों तरफ के लोग, या तो लीडर या टीम मेंबर्स, बोथ कैन कम्युनिकेट इन अ वेरी गुड वे, और एक बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। लीडर अगर कोई बात अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से कहना चाहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपनी बात कहता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। और अगर टीम मेंबर्स अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास मे बी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, मे बी they can contribute in a very different way to the particular matter, so वो भी बिना किसी hesitation के, बिना किसी डर के अपनी बात को रखते हैं। the decision making is decentralized। यहाँ पर जैसे हमने प्रायर लीडरशिप स्टाइल में देखा था, that was centralized by the head or the leader of the team, but यहाँ पर जो decision making है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर ही निर्भर या नहीं आवश्यकता है कि वो इंडिविजुअली उसके लिए डिसीजन ले। यहाँ पर डिसीजन को डिसेंट्रलाइज किया गया है। सभी टीम मेंबर्स डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। देन उसके बाद यूनानिमसली, यानी कि सभी को साथ में लेते हुए एक जो सेंट्रलाइज डिसीजन, एक जो यूनानिमस डिसीजन है, जो म्यूचुअल डिसीजन है, वो लिया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है केवल। देन इट फोकसेस ऑन शेयरिंग एंड केयरिंग वर्क स्टाइल। ये जो स्टाइल है ये बहुत फेमस है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए कि यहाँ पर शेयरिंग और केयरिंग को ध्यान में रखा जाता है। एवरी वन इज़ रिक्वायर्ड टू शेयर द थिंग्स, जो भी उनके दिमाग में है, जो इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर रहे हैं उसको शेयर करना होगा। एंड एज अ रिजल्ट एवरी वन इज़ गोइंग टू केयर अबाउट एवरी वन। कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए इज़ ऑलवेज केयरफुल विद द व्यूज़ ऑफ मिस्टर बी, एंड मिस्टर बी इज़ हैविंग वन व्यू, एंड मिस्टर सी इज़ अगेन ही हैज़ समथिंग टू contribute into the matter. तो मिस्टर सी is always going to be welcome by the team members and the leader itself to contribute or to present his view about the matter. So यहाँ पर sharing and caring is the important feature of this particular leadership. It motivates the workers strongly and enhances their morale. Obviously, when we have our role play in the matter, in the task, in the mission of the organization, we know कि we have a important role, we have a important place in the organization, जहाँ पर हमारी बात को सुना जाएगा, हमारी बात को फॉलो किया जाएगा। तो ये वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को बहुत मोटिवेट करता है और उनका जो मोराल है बहुत हाई हो जाता है। एंड दे ऑलवेज थिंक अबाउट और इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हम और क्या बेहतर कर सकते
सकते हैं. देयर इज़ शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन बोथ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. और यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, दायित्व होते हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है. केवल सबॉर्डिनेट ही काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि सुपीरियर भी, जो हेड है, जो लीडर है, वो भी सारे काम को, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको शेयर करता है, उनके साथ एज अ मेंबर काम करता है. ही इज़ नॉट ऑलवेज प्लेइंग द रोल ऑफ हेड ऑफ द टीम. मैनी ऑफ द टाइम एंड ऑलवेज ही इज़ रियलाइजिंग द अदर टीम मेंबर्स कि ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम. So this is very good. It sometimes manipulates the employees. और कई बार क्या होता है कि इस स्टाइल के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं. कई बार हमको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, हमारी बात को सुना जाता है, और कई बार हमें दूसरे की बात को भी मानना पड़ता है और उनको सुनना पड़ता है. सो वाइस वर्सा एनवायरनमेंट इज़ देयर कि जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉई अपनी बात को थोप नहीं सकता कि इफ़ वी हैव अ गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉयर और द टीम हेड तो हमारी बात ही सुनी जाएगी. तो ऐसा नहीं है. द लीडर कंसल्ट्स ओनली विद द एम्प्लॉयज़ बट डोंट शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग प्रेशर है या जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बस एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही आ गई, और जो हेड है, जो टीम है, वो केवल ये कह कर के भाई डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, सो यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड यू हैव राइट टू टेक द डिसीजन. जो लीडर है वो एज अ टीम मेंबर सभी से डिस्कस करता है, बातें शेयर करता है, उनके व्यूज़ लेता है, और देन उसके बाद फाइनल डिसीजन को लिया जाता है. राइट. तो इसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस स्टाइल को बेहतर समझने के लिए. जैसे कि अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, वो उनका जो स्टाइल था लीडरशिप का वो डेमोक्रेटिक था. चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों अपना स्कूल में हिस्ट्री में, तो वो भी बहुत ही डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ लीडर थे. और करेंटली अगर हम ऑब्जर्व करें, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनका भी स्टाइल कुछ डेमोक्रेटिक लीडरशिप जैसा है. ही ऑलवेज अप्रोच द पीपल ऑफ द कंट्री एंड ही ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट और इंटरैक्ट विद द पीपल, एंड देन आफ्टर ही इज able to take the decision for the country, for the nation. So this kind of style match with Mr. Modi. Now number 3 style we will discuss here, which is called the free reign leadership. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेस फरारे. इसको इस नाम से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये स्टाइल. और देन वी विल डिस्कस नाउ द अदर पॉइंट्स. Complete freedom is given to the employees to determine the manner and mode of working. ये जो स्टाइल है स्टूडेंट्स, ये एक कंप्लीट फ्रीडम को अडाप्ट करता है. यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जो चाहें वो करें, आप जिस तरह से भी काम करना चाहें वो करें, जो मोड ऑपरेट करना चाहें वो करें. अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आजकल जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में इस तरह के स्टाइल को अडॉप्ट करने की एक प्रचलन में आने लगे है, इस तरीके का मोड जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है. वी द कंपनीज और द लीडर ओनली रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, वेदर हाउ दे आर डूइंग द परफॉर्मेंस, हाउ दे आर गिविंग देयर वर्क, इट इज़ गोइंग टू हार्डली मैटर. जैसे कि हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखें, जिसमें कि आप वर्क फ्रॉम होम का मोड ऑप्ट कर सकते हैं. बस रिजल्ट्स चाहिए, आपको जो काम करना है आप अपना काम करके दीजिए. आप कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितने आवर्स में करते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर. द एम्प्लॉयज़ कैन कॉन्टैक्ट द सुपीरियर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड एंड नॉट फॉर एवरी टाइम. जैसे कि हमने ऑफिसेज में या कंपनीज़ में हम देखते हैं कि आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं कि फर्स्ट व्हेन यू जस्ट एंटर इनटू द कंपनी यू हैव टू विश द बॉस, देन उसके बाद बॉस के पास आप रिपोर्टिंग करेंगे, टाइम टू टाइम आप उसको जाकर अपनी बात बताओगे, बिकॉज इट्स अ प्रोटोकॉल, आपको यू हैव टू फॉलो दोज. बट इन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप एम्प्लॉयज़ को पूरी लिबर्टी दी जाती है. उनको कोई भी किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है. उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार वो अपने बॉस को वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर साइड कि व्हेन द टास्क इज़ कंप्लीटेड, व्हेन ही वांट टू डिस्कस समथिंग विद द सुपीरियर और द बॉस, देन ही इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू गो देयर, नॉट एवरी टाइम. देन इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. और जब आपको पूरी स्वतंत्रता मिलती है काम करने की, तो कहीं ना कहीं आप
एक्सप्लोर होते हो, आप डेवलप होते हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर आप किसी के प्रेशर में काम करोगे, आप खुद ही आप इस बात को इमेजिन करके भी देख सकते हैं बच्चों कि अगर आप पे कोई प्रेशर है, आप पे किसी चीज़ का दबाव है, तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या होगा। और अगर आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि दिस इज़ योर टास्क, यू आर द मास्टर ऑफ योर वर्क, यू जस्ट डू एंड गिव द रिजल्ट्स, तो आपके परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, राइज कर जाएगा, और रिजल्ट्स भी कहीं और ही पहुंचेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल एंड विद अदर्स। इट्स एन एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच, और इस अप्रोच को इसीलिए बिकॉज एम्प्लॉय आर द मेन हीरो ऑफ दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल, सो इसी वजह से इस एम्प्लॉय को, इस लीडरशिप स्टाइल को एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच भी कहा जाता है। समटाइम्स इट मे लीड टू बिग chaos एंड मिसमैनेजमेंट, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि अधिक ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से आप उम्मीद से ज़्यादा अगर स्वतंत्रता दें और फ्रीडम दे दें, उनको एक लिबर्टी दे दें, तो चीज़ें मिसमैनेज भी हो सकती हैं और chaos भी फैल सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक राइट मैनर में, एक फॉर्मेट के साथ आप इन चीज़ों को अप्लाई करो। कितना फ्रीडम देना है ये आप डिसाइड करो, एंड देन उसके बाद इस तरह के लीडरशिप को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अचीव्ड। इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात करें तो हमारे देश में भी रतन टाटा हैं, जिनका अगर आप कभी मौका मिले तो आप गूगल पे सर्च करके इनके वर्किंग स्टाइल को इनको जानिएगा। तो इनका स्टाइल भी फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल रहा है। ये अपने एम्प्लॉयज़ पे कोई चीज़ थोपते नहीं हैं और उनको पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी बात कहें और अपने स्टाइल से काम करें, ताकि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली मिलें। तो और इसके अलावा अगर आप देखना चाहो कि जो गूगल है, जो कंपनी गूगल है, उसका काम करने का, अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेने का स्टाइल भी कुछ इससे मिलता जुलता है, जिसमें कि दे डोंट आस्क देयर एम्प्लॉयज़ टू ऑलवेज कम एंड रिपोर्ट टू द ऑफिस। दे आर फ्री टू वर्क फ्रॉम एनी प्लेस। they only want to just get the results from their employees, और उसी के बेसिस पर वो उनको हायर भी करते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करें, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस उनसे लिया जा सके। तो गूगल भी इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि आपको शायद कुछ हद तक ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और आपसे मैं कहूँगी कि इसको आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर का डिटेल है वो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लीडरशिप का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि थ्योरीज ऑफ लीडरशिप होगा। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, फॉर नाउ just stay home, stay safe. Goodbye, take care of yourself.